Hello guys, welcome back to Origits Computer Classes. How are you? Hope you guys are doing extremely well. So let us start with a new topic today under linear data structures, that is linked lists. Now till date we have learned about storing so many ways of storing data. First came the variables, then the arrays, okay, and in this way structures and all. So now why the concept of linked list is required? See, till date हम लोगों ने जो भी करते हैं that is in case of arrays. Say suppose I want to store multiple datas, right, of the same data type. In that case we used to have arrays. Arrays में we could have stored tens, thousands, मतलब n का जो size है उसके ऊपर we depend कि how many elements we can store in the arrays, right? But say if the number of elements are not fixed, आपको n मतलब n be the size of the array, जहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि कितना एलिमेंट्स आपको स्टोर करना है. Getting my point? For example, if you just take the example of a bank, okay. बैंक में अब क्या होता है, हर दिन इट इज़ पॉसिबल कि हर दिन एक नया कस्टमर आए, राइट, एंड उस केस में यू कैन नॉट फिक्स कि दिस मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स आर गोइंग टू ओपन अकाउंट, राइट. यू कैन नॉट फिक्स दैट क्योंकि बैंक्स तो है फॉर ओपनिंग द अकाउंट्स, और कोई भी अगर मन चाहे उसके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो ऑफकोर्स ही और शी शुड बी एबल टू ओपन एन अकाउंट, राइट. And now in this case you cannot say कि only 10,000 customers are going to open account or only 20,000, because arrays में क्या होता है, we need a fixed number of elements, right. तो उसके लिए आपको number of elements fix करना पड़ेगा, right. लेकिन banks में that is not possible. Now another example, if I say suppose hospitals. अब हॉस्पिटल्स का अगर मैं बात करूँ देन इन दैट केस देर आर सो मेनी पेशेंट्स हु कैन हैव इमरजेंसी कंडीशंस, ओके, एंड फॉर इमरजेंसी एडमिशन वी कैन नॉट फिक्स इट टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेशेंट्स, राइट. से सपोज आई से कि फॉर अ डे ओनली 10,000 पेशेंट्स कैन गेट एडमिटेड इन टू अ हॉस्पिटल, बट दैट इज लाइक दैट विल साउंड क्वाइट इनह्यूमन, राइट, बिकॉज 10,000 से ज़्यादा बहुत सारा कस्टमर्स का हो सकता है इमरजेंसी कंडीशन. अब 10,000 अगर मैंने लिमिट कर दिया उस केस में, तो इन दैट केस अब बाकी पेशेंट्स कहाँ बच जाएगा, दैट मीन्स सो दैट विल बी क्वाइट इनह्यूमन एंड दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन. तो एरेज से दैट मीन्स काम नहीं चलेगा. सो हेंस कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट इज़ not like any contiguous allocation of memory. जैसे in case of arrays we used to see there was a continuous memory given to, say suppose int a and I have defined 5, so there will be like 5 blocks, 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5, hence indexing was 0 1 2 3 4. So if the base address, I hope these concepts, you have watched my lectures on arrays, so these concepts shouldn't seem new to you. If it seems so, then please go to my lectures of array lectures, arrays part 1, okay. So these concepts I have discussed it clearly in that way. Go and watch that video first and then come to this video, okay. So if it is fixed that if the address of the first block is 100, then if it is of integer data type and 64-bit compiler, in that case the next bit will be at 104, because the size of integer is 4 bytes in 64-bit compiler. Then the next will be surely at 108 and surely at 112 and surely at 116, right. So this was the concept of arrays. So that means your base address can be anything,
but then the continuation will be like +4 every time. Here to here it is +4, here to here it is +4. That is the size of data type, right? So these +4s are size of data types, okay? But in case of linked list, there is no such case. In linked list, first of all, there are 4 kinds of linked list, okay? 4 types of linked list. So let me write it down, the 4 types of linked lists. So these are the 4 kinds of linked list we have, okay? Now before understanding these 4 types, first let us know the base of the linked list, what it is actually doing. See, what is happening is there will be a node, okay? Just like any data type, this is also a data type, okay, where a node is created. This is a node, and if I simply say this node will be having one data part, okay, one data part, and another address part, one data part, this is a data, and another is the address in the sense address of the neighboring nodes. I won't say next nodes, but rather it is appropriate to say neighboring nodes, address of neighboring nodes. Now in this case, whom do we consider the neighbors? Neighbor is the one who is just next, who stays just next to you, okay? Not next to next, just next to you. So now the concept of this, see, address part can be more than one, but data part is always one, okay? Every time it is maintained one, only one data is accepted, but address part can be more than one. Now when address part, we are having one address part and one data part. See, the red written part is 12 and this is the address part. So when there is only one address part and this address is the address of just the next node. Similarly, if this is my node, this node is containing the address of the, so it is like a train, you can say a goods train, where this हेड नोड इज द इंजन. अब कैसे ये काम कर रहा है बेसिकली द थिंग इज दैट कि जैसे एरेज में आपको पता होता है कि एक 100 में अगर एड्रेस है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट 104 में ही होगा एट द मेमोरी लोकेशन. इफ वी गो बाय द मेमोरी लोकेशन, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एट 100, देन द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी एट 104, राइट? लेकिन लिंक लिस्ट में तो ऐसा नहीं है ना. लिंक वी डू नॉट नो, इनफैक्ट वी आर नॉट श्योर कि ये जो पूरा नोड है, इस नोड का एड्रेस 100 ही होगा. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है? एरेज में भी जैसे श्योर नहीं थे बेस एड्रेस क्या होगा, दैट वाज अप टू द सिस्टम, ठीक है? इस केस में वी आर नॉट श्योर कि बेस एड्रेस, आई मीन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड व्हाट विल इट बी. लेकिन जो भी एड्रेस होगा दैट विल बी अ मेमोरी लोकेशन and we are somehow storing it into the head. ओके, कैसे स्टोर करेंगे वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन द हेड नोड इज कॉन्टेनिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. हेड इज कॉन्टेनिंग, हेड इज लाइक ए इंजन ऑफ द ट्रेन, लाइक एन इंजन ऑफ द ट्रेन, ठीक है? सो दिस इज जस्ट इधर से लिंकिंग स्टार्ट होता है बेसिकली. सो हेड इज कॉन्टेनिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. Now we are just linking one after the other compartments. So if this is my first node में see, अब किसी भी data structure का first intention है to store the data, so it is storing the data. लेकिन another extra parties, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, we do not know where the next element is going to come. Next element is going to come
एट सम मेमोरी लोकेशन, येस और नो। तो उस मेमोरी उस एलिमेंट को भी हम एक नोट के फॉर्म में स्टोर करेंगे, एंड so that we can go from here to here, we are storing the address of the next element here. Getting my point? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाए जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, तो जस्ट वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, द नेक्स्ट नोड वेयर द एलिमेंट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर हुआ, ये भी तो एक नोड्स है। अब इसके बाद भी यूजर डेटा दे सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब पहले से सपोज इधर से कुछ नहीं था, पहले जस्ट इमेजिन ये वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है, ओनली दिस वाज द नोड, ठीक है। बैंक का एग्जांपल समझो, एकदम बैंक से सपोज वी आर ऑपरेटिंग अ बैंक, ठीक है। फर्स्ट कस्टमर केम, ठीक है। अब वी डू नॉट नो हाउ मेनी कस्टमर्स आर गोइंग टू कम, राइट। तो फर्स्ट कस्टमर केम, वी हैव स्टोर्ड इट इन अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसका एड्रेस हमको कैसे पता चलेगा कहाँ स्टोर है, बिकॉज दिस एड्रेस इज गिवन बाय द सिस्टम। सो वी आर स्टोरिंग दैट एड्रेस इन अ हेड नोड, फाइन। अब नाउ द नेक्स्ट कस्टमर कम्स। अब एरे तो है नहीं भाई, एरे अगर होता तो वी कुड हैव सेड कि ARR ऑफ 1 में स्टोर द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट कस्टमर, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग एरेज ना, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी कस्टमर्स आर गोइंग टू कम। सो नाउ दिस नोड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब ये से सपोज फर्स्ट ये लिंकिंग नहीं था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये लिंकिंग नहीं है अभी, ठीक है, ये अभी खाली था, ठीक है। दिस डेटा वाज गिवन बाय यूजर, ठीक है। 24 इज सम अकाउंट नंबर, से सपोज द अकाउंट नंबर ऑफ द यूजर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अब when the new node has entered, ये इसमें हमने डेटा भी ले लिया। अब भाई हमको मालूम दिस एड्रेस हैज बीन गिवन बाय द सिस्टम। अब हमको कैसे, हमको तो फ्यूचर में फेच करना पड़ेगा ना भाई। अगर बैंक में इफ समवन हैज ओपनड द अकाउंट, एनी अकाउंट, इन फ्यूचर आई नीड टू फेच, तो कैसे फेच करेंगे, बिकॉज दिस एड्रेस इज गिवन विद, हमको मालूम नहीं कि ये एड्रेस 200 है। गेटिंग में 200 इज अ रैंडम नंबर गिवन बाय द सिस्टम। ये ऐसा नहीं कि 100 के वक्त 200 है, ऐसे नहीं है। इट कुड हैव बीन 150 ऑल्सो, जैसे नेक्स्ट केसेस में आप देख रहे हो, फाइन। इट इज अ सिस्टम गिवन एड्रेस। तो व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट जो कस्टमर आते हैं उसके नोट से नेक्स्ट में वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है। इसका मतलब हम सिस्टम को एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका जो भी एड्रेस है, इसका जो भी मेमोरी लोकेशन है, आप अपने नेक्स्ट में स्टोर कर लो, अब ये 200 इट इज आई एम राइटिंग क्योंकि इधर 200 है, लेकिन इट विल बी ऑटोमेटिकली, अब सिस्टम ये इंटरनली होगा। हम सिर्फ ऐसे इंस्ट्रक्शन सी में लिखेंगे। ऑफ कोर्स अब तक तो पॉइंटर सब लोग देख ही चुके होंगे। तो यूजिंग पॉइंटर्स वी आर गोइंग टू से इसका जो भी एड्रेस है स्टोर इट। अब ये स्टोर कर लिया, दैट मीन्स इट इज लाइक अ पॉइंटर ना, दिस पार्ट इज लाइक अ पॉइंटर, सो दिस विल बी पॉइंटिंग टू दिस नोड। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दिस हैज मेड योर कॉन्सेप्ट क्लियर। सिमिलरली अब नेक्स्ट ये नोड जो है, ठीक है, ये वाला जो नोड है, दिस विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट। अब ऐसा करते करते अब यूजर ने बोला कि हमको अब और कोई डेटा नहीं देना है, ठीक है। यूजर मतलब एनी कस्टमर हैज नॉट केम फॉर द डे, फॉर दैट डे नो मोर कस्टमर हैज केम। तो अब लास्ट कस्टमर जब आया, ठीक है, इसके बाद अभी कोई कस्टमर नहीं आया, ठीक है। हमको वी डू नॉट नो कि इसके बाद कोई कस्टमर्स नहीं आएगा। इट हैज़ बीन सीन कि कोई कस्टमर्स नहीं आया, ठीक है। अब नहीं आया तो नेक्स्ट वाला पार्ट ऐसे ही खाली पड़ा रहा। तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट ऐसे ही खाली, मतलब कोई गार्बेज वैल्यूज तो नहीं रख सकते। तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट कस्टमर, लास्ट नोड इज 0, क्योंकि इसके बाद इसका कोई एड्रेस नहीं है ना। तो यू कैन ऑल्सो स्टोर अ नल
अब जीरो से समझना इजी होगा, इसलिए बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लिंक लिस्ट आई एम जस्ट यूजिंग जीरो, फाइन। अब बाकी, अब जैसे इस केस में एक साइड में वी आर लिंकिंग, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लिंक लिस्ट। ये तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट को डिस्कस किया। ऐसे ही करके देयर इज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इट इज अ बोथ साइड लिंकेज, दैट मीन्स दिस नोड इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 150, राइट। तो 150 इट इज पॉइंटिंग, सो यूजिंग दिस एरो इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। सिमिलरली अब ये वाला जो नोड है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टू द प्रीवियस नोड, राइट। अब पहले नोड के पहले तो कोई नहीं था, तो से सपोज फर्स्ट कस्टमर हैज एंटर्ड, तो उससे पहले कोई नहीं आया था, तो इसीलिए इसका पहला वाला जीरो। तो दैट मीन्स से सपोज दिस अ प्रीवियस एंड दिस पार्ट इज द नेक्स्ट। सो प्रीवियस इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ सर ना, फ़ायदा यही हुआ कि देखो अब सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट। तो अब देखो इट इज़ वेरी हेक्टिक कि मतलब से सपोज किसी कस्टमर अगर अकाउंट रिमूव करे तो हमको इधर से इधर एक ही साइड में आई कैन मूव, राइट। लेकिन बट से सपोज अब डबली लिंक लिस्ट में, से सपोज सिंगली लिंक लिस्ट में अगर कस्टमर नंबर 300, जो एड्रेस 300 पे जो कस्टमर है, he or she is attempting to remove the account, तो अब देखो हम, it is not an array, I am telling you 100-200 times, it is not an array। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हेड नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई नीड टू विजिट दिस नोड फर्स्ट, तो इसका नेक्स्ट हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट में आई विल बी रीचिंग टू दिस नोड, अब इसका नेक्स्ट देन आई एम रीचिंग दिस नोड। अगर एरे होता तो वी कुड हैव डायरेक्टली सेट ARR ऑफ 2, तो दिस इज तो बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इट इज बिग O ऑफ n। अब n मतलब क्योंकि कोई भी कस्टमर हो सकता है, आई एम कंसिडरिंग दिस कस्टमर। अब अगर ये कस्टमर रिमूव कर रहा है तो सो इफ दिस कस्टमर इज रिमूविंग हिज और हर अकाउंट, हमको पूरा फर्स्ट से इधर तक ट्रैवल करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन इस केस में से सपोज कस्टमर नंबर 250 wants to delete the account, तो अब हम फर्स्ट से भी जा सकते हैं, अब लास्ट से भी जा सकते हैं। कहाँ से इजी पड़ेगा हमको, कहाँ से इजी पड़ेगा, लास्ट से जाना ना। तो हियर आई एम मेंटेनिंग अ टेल पॉइंटर ऑल्सो। अब टेल से हम इस साइड में, तो पहले हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, तो आई मीन सॉरी इसका प्रीवियस देखेंगे। इसका प्रीवियस इज 250 एंड इजीली हम जस्ट एक ही नोट पे पहुंच गए, ठीक है। मतलब दीज आर जस्ट मतलब ऐसे इसीलिए किया गया है इसको। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। अच्छा, नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब सिंगली सर्कुलर में क्या होता है, सिंगली सर्कुलर इज नथिंग बट सिंगली लिंक लिस्ट, बट लास्ट नोट का हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग इट टू जीरो, लास्ट नोड इज लाइक पॉइंटिंग इट टू द फर्स्ट नोड। लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। तो अब इसमें लाइक फ़ायदा क्या हो सकता है, देखो गाइस, द फ़ायदा जब अगर मैं फ़ायदा की बात करूँ कि मतलब सिंगली लिंक लिस्ट से सिंगली सर्कुलर क्यों बेटर है, एक्चुअली यू आर नॉट मूविंग टू एनी नल। अभी अगर देखो कि हमको एक तरीके से अगर इसका नेक्स्ट जाए तो फर्स्ट कस्टमर मुझे फर्स्ट नोड आई एम गेटिंग, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि दिस इज़ द लास्ट नोड, ये भी फाइन है। एंड अगर इसके नेक्स्ट में आई एम कीपिंग जीरो और नल, सो इन मेनी केसेस मतलब इट इज़ लाइक क्या बोले, आई मीन इट इज़ नॉट कॉन्वीनियंट, इट इज़ नॉट कॉन्वीनियंट। से सपोज किसी आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, से देयर आर अपडेशन, से KYC अपडेशन करना है किसी कस्टमर्स को, फाइन, छोड़िए बैंक का एग्जांपल छोड़ते हैं। अगर से सपोज हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं मान लेता हूँ। सो दिस इज से सपोज पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, पेशेंट नंबर 3, पेशेंट नंबर 4। नाउ डॉक्टर विजिट्स, ठीक है, डॉक्टर इज गोइंग टू विजिट,
अब इफ डॉक्टर विजिट्स ना, अब पेशेंट, डॉक्टर ने बोला कि मैं एक एक करके पेशेंट को देखते देखते जाऊँगा, ओके, आई विल बी ऑब्जर्विंग पेशेंट्स वन बाई वन, ठीक है। अब मान लीजिए पेशेंट नंबर 1 को से सपोज समथिंग इज रिक्वायर्ड, से सपोज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मैं ऐसे ही रैंडम मारूँ बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मैं एक रैंडम मान रहा हूँ कि से सपोज पेशेंट नंबर 1 रिक्वायर्स ऑक्सीजन सपोर्ट, ठीक है। लिस्ट वाइज अगर मैं मानूँ पेशेंट नंबर ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, फिर नेक्स्ट इट ही और शी रिक्वायर्स क्या बोले लाइक blood can be donated, okay, I mean the patient 1 requires blood receivable, okay, saline, fine। सिमिलरली से सपोज पेशेंट 2 को भी से सपोज मान लीजिए सेम रिक्वायरमेंट्स है, पेशेंट 3 को भी सेम रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जैसे आता है डॉक्टर्स रेगुलर विजिट करते हैं एक बार, ठीक है, हर एक पेशेंट को से मान लीजिए रेगुलर विजिट कर। दिस जस्ट है मेकिंग अंडरस्टैंड क्यों सिंगली सर्कुलर थोड़ा सा बेहतर है, सिंगली डायरेक्ट सिंगली लिंक लिस्ट, फाइन। तो अब मान लीजिए पेशेंट नंबर, अब डॉक्टर सेज, डॉक्टर है बिजी इंसान है, राइट, डॉक्टर तो बिजी होता है डॉक्टर लोग। अब डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, पेशेंट नंबर 1 के पास पहले जाएंगे, उसका पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे, फिर पेशेंट नंबर 2 के पास जाएंगे, फिर उसका पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, ऐसे करते करते लास्ट पेशेंट के पास जाएगा, फिर उसका पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल किया, अब सेकेंड फिर से पेशेंट 1 के पास स्टार्ट करेगा, फिर पेशेंट 1 का सेकेंड रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी फुलफिल्ड, पेशेंट 2 का सेकेंड रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे करके फ्रॉम द डॉक्टर विजिट्स एंड फुलफिल्स रिक्वायरमेंट 1 by 1। नाउ इफ दैट इज द केस एंड डॉक्टर बीइंग अ बिजी पर्सन, वो ऐसे ही एक एक करके, बिकॉज उसको क्या चाहिए, उसको देखना है कि बिकॉज एवरी पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट गेट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो एक एक करके रिक्वायरमेंट फुलफिल करते करते, ऐसा अगर मतलब से पेशेंट 1 को हंड्रेड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, पेशेंट 1 को हंड्रेड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, और फिर पेशेंट 1 का 100 ऑफ रिक्वायरमेंट्स अगर एक ही बार में फुलफिल करने जाएगा, अब बाकी पेशेंट्स वेट कर रहे, अब उन लोगों को से कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, इफ द अदर 3 पेशेंट्स आर हैविंग सम इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स, तो उतने देर में तो गया ख़त्म, डॉक्टर जब तक उन लोगों के पास पहुंचेगा, फाइन, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब इसीलिए डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया कि एक एक करके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते करते, मतलब पेशेंट 1 का से ऑक्सीजन सपोर्ट रिक्वायर्ड है, पेशेंट 2 का भी है, पेशेंट 3 है, तो इसका ऑक्सीजन सपोर्ट दे देगा, फिर इसका ऑक्सीजन सपोर्ट, इसका ऑक्सीजन, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इस केस में क्या होगा कि डॉक्टर पहला पेशेंट को विजिट किया, ऑक्सीजन सपोर्ट इज फुलफिल्ड, फाइन, ऑक्सीजन सपोर्ट इज फुलफिल्ड, पहला पेशेंट का काम हो गया, फाइन, पहला पेशेंट का पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, नॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल। नाउ कमिंग टू पेशेंट 2, पेशेंट 2 का ऑक्सीजन सपोर्ट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन सपोर्ट गिवन, पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, फाइन। अब पेशेंट 3, ना पेशेंट 3 का ऑक्सीजन सपोर्ट फुलफिल, फाइन, पेशेंट 4 का ऑक्सीजन सपोर्ट फुलफिल, राइट। लेकिन तो अब डॉक्टर कैसे गया होगा, ठीक है, अब डॉक्टर मतलब इधर मान लीजिए कंप्यूटर्स के केस में ऑफ कोर्स इट विल बी लाइक अ पॉइंटर, राइट, ठीक है, पॉइंटर मतलब अब मैं जैसे डॉक्टर विजिट करे तो सिस्टम में भी स्टोर करना पड़ेगा ना, तो सिस्टम क्या कर रहे हैं, सिस्टम इज मेंटेनिंग अ पॉइंटर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर। अब पॉइंटर अगर मेरे सिस्टम में कैसे मूव कर रहे हैं, तो पॉइंटर क्या करेगा, ये इसका नेक्स्ट देखा, इसका नेक्स्ट 200, फाइन, तो इसका नेक्स्ट अगर 200 है तो 200 पे मैं पॉइंट करूँगा,
200 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, 200 रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, अब 200 का नेक्स्ट क्या है 300, ओके आई एम पॉइंटिंग टू 300, फाइन। 300 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, 300 का नेक्स्ट कौन है 350, अब 350 आई एम मूविंग टू 350। अब नाउ 350 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, नाउ इट हैज टू कम टू द फर्स्ट पेशेंट अगेन ना, टू फुलफिल द सेकेंड रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर मैं सिस्टम का बात करूं, डॉक्टर तो पहुंच जाएगा, डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर तो पैर से चल के पहुंच जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमारा सिस्टम में भी तो स्टोर रिकॉर्ड रखना चाहिए ना कि हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड बाय द डॉक्टर। गेटिंग माय पॉइंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर सिस्टम में मुझे रिकॉर्ड करना है तो सिस्टम कैसे पहुंचेगा इधर से इधर, लास्ट नोट से फर्स्ट नोट कैसे पहुंचेगा? दैट मीन्स आई नीड टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। इफ आई रीस्टार्ट द प्रोग्राम, these requirements will again be initialized by 0. दैट मीन्स मुझे दिखेगा कि फर्स्ट पेशेंट का ऑक्सीजन सपोर्ट भी फुलफिल नहीं हुआ, बट इट इज ऑलरेडी बीइंग फुलफिल्ड बाय द डॉक्टर। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अब ये एक मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाया। एक्चुअली द प्रॉब्लम हैपेंस इन मैनेजिंग द डेटा स्ट्रक्चर। ये दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओनली ऑकर्स बट इन अ लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इन अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। गेटिंग माई पॉइंट। अब इस केस को, अब इसीलिए मैं अगर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली सर्कुलर का बात करूं, तो अब देखो सिंगली सर्कुलर में तो डॉक्टर कम्स टू द फर्स्ट पेशेंट। अब इसमें भी वही 4 रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन, ब्लड, ऑक्सीजन, ब्लड, सैलाइन सपोर्ट, ओके, सैलाइन सपोर्ट, फाइन। तो डॉक्टर कम्स टू द फर्स्ट पेशेंट, ऑक्सीजन सपोर्ट इज फुलफिल्ड, फर्स्ट पेशेंट का फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, नॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। इसका अगर ऑल द रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने जाएगा तब तक इसको ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला, बहुत टाइम निकल गया, गुजर गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर he or she should save all the patients, right? तो डॉक्टर कम्स टू द नेक्स्ट पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर कम्स टू द नेक्स्ट पेशेंट, इसका ऑक्सीजन सपोर्ट फुलफिल्ड, रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, राइट। पॉइंटर ऐसे दिख रहा है कि पॉइंटर का नेक्स्ट कौन है 200, अब 200 में आया, 200 का नेक्स्ट कौन है 300 में पॉइंटर आया, इसका भी ऑक्सीजन सपोर्ट फुलफिल्ड, फाइन, ठीक है। अब इससे जाना, अब नाउ पेशेंट 1 का सेकेंड रिक्वायरमेंट आई हैव टू फुलफिल, तो अब ऑफ कोर्स आराम से जा सकते हैं अभी भाई। तो अब इसका नेक्स्ट कौन है 300 का नेक्स्ट कौन है 100, तो आई एम अगेन कमिंग बैक टू पेशेंट नंबर 1, इसका सेकेंड रिक्वायरमेंट ब्लड इज ऑल्सो फुलफिल्ड, सो ब्लड हैज बीन डोनेटेड टू द फर्स्ट पेशेंट, राइट। ऐसे ही करके नेक्स्ट में आया तो इसका भी ब्लड हैज बीन गिवन, फाइन, ब्लड हैज बीन गिवन, फाइन। अब इसका भी नेक्स्ट में आया, ब्लड हैज बीन गिवन, ओके, राइट। अब इसका थर्ड रिक्वायरमेंट फिर से पॉइंटर, इसका नेक्स्ट 100, तो पॉइंटर फिर से इधर चलाएगा, सैलाइन रिक्वायरमेंट, ओके, फुलफिल। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे करते करते तो अब जब रिक्वायरमेंट स्टॉप हो जाएगा, वी आर गोइंग टू स्टॉप, राइट। तो हमको एक तरीके से देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि इसके नेक्स्ट में मुझे एकदम बिल्कुल हेड नोट मिल रहा है, तो इफ द नेक्स्ट ऑफ दिस इज हेड, तो हमको पता चल गया कि दिस इज द लास्ट नोड, फाइन, ये भी पता चल रहा है। एंड ऑल्सो डेटा मैनिपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज वेरी इजी, becomes very efficient, समझ में आया। एंड इन केस ऑफ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, अब इसमें भी क्या है भाई, अब डबली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट, ये डबली लिंक लिस्ट ये है, ठीक है। अब डबली लिंक लिस्ट में इफ आई पुट, आई मीन इफ 100 previous is pointing to the last node, 100 previous is pointing to the last node, and 85, I mean, ठीक है, 300 नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। सो दैट बिकम्स डबली सर्कुलर, दैट बिकम्स डबली सर्कुलर, यस और नो।
अब इसमें क्या हो सकता है भाई, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर कैन मूव। अब देखो, से सपोज ऑल द पेशेंट्स डजंट रिक्वायर ऑल द सपोर्ट्स, ठीक है, अब तो फर्स्ट से मैं डायरेक्टली लास्ट में मूव कर सकता हूँ, राइट। एक तो बिकॉज ये डबली सर्कुलर है, इफ पेशेंट 1 को से सपोज डॉक्टर ने विजिट करके पेशेंट 2 के पास गया, अब एज सुन एज ये पेशेंट 2 के पास गया, पेशेंट 1 का कुछ ऐसा हुआ कि पेशेंट 1 का कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ पड़ा, राइट। पेशेंट 1 को देख के डॉक्टर गोज टू द नेक्स्ट पेशेंट। अब व्हेन डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, डॉक्टर इज टेकिंग ऑफ द पेशेंट 2, तो पेशेंट 2 को देखने के बाद सपोज पेशेंट 1 का कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, राइट, तो नाउ डॉक्टर कैन इजीली मूव टू द प्रीवियस नोड, राइट। एक तो ये बात बन सकता है, जैसे पेशेंट 1 को देख रहे हैं, पेशेंट 1 को देखते वक्त पेशेंट 4 लास्ट पेशेंट जो है, इसका बहुत ही हालत खराब हो गया, गेटिंग माई पॉइंट, इसका कुछ ना देयर इज सम प्रॉब्लम, इमीडिएटली डॉक्टर, इट इज एन इमरजेंसी विजिट, इमीडिएटली द डॉक्टर हैज टू विजिट। इन सबको अगर विजिट करने जाएगा तब तक पेशेंट का हालत ओके, आई मीन गोइंग टू पास अवे, तो इमीडिएटली डॉक्टर हैज टू विजिट। कैसे विजिट करेगा, इसका प्रीवियस देख लो भाई, इसका तो पॉइंटर विल पॉइंट, इसका प्रीवियस कौन है, इसका प्रीवियस है सॉरी 300, द लास्ट नोड इज 300, तो डॉक्टर विल गो टू द लास्ट नोड एंड दिस इज हियर he has come, he or she, okay. So these are the 4 types of linked list I have discussed. So next in the upcoming video I will be starting with the implementation of the singly linked list, right? So till then, bye bye, take care and take care of your family. होप आपको ये 4 लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में समझ में आया। अगर किसी भी पोर्शन में आपको डाउट हो तो ऑफ कोर्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ऑफ कोर्स उसको डाउट को क्लियर, मैं आई विल एड्रेस दैट डाउट, ओके, आई विल एड्रेस योर डाउट्स डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू।